acoustic modulation, right? So not to mention every time. So we have equation that we have developed yesterday. यार कहाँ पे था उसका equation? So we have developed this equation. So that we have developed is your AC cos 2 pi fct plus 2 pi fm nt, यही है ना सर जेएन बीटा जेन बीटा आएगा, सॉरी जेन बीटा क्या आएगा इसमें, एक से फिर से बताना है इसको। जेन बीटा नहीं यार काम नहीं चलेगा फिर उसका। So this means that wide band FM, right? So we give as that is the standard equation is that your AC and summation of minus infinity to plus infinity Jn beta and then cos आप चाहें तो पाई ही बाहर निकालिए 2 पाई एफ सी माइनस एन नहीं प्लस एन एफ एम टी, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म आपका हो गया, अच्छी आसानी से दिख रही है, ठीक है। सो इससे हमने एक ये कैलकुलेट कर लिया कि द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इट हैज, तो इसमें दो चीजें हमने निकाले। नंबर वन दिस वाइड बैंड एफएम है ना, वाइड बैंड एफएम, क्या राइटिंग लिखना, so the wide band FM has infinite number of side bands, right? एक तो ये चीज हमने निकाला, okay? So this implies that this ideally this FM requires infinite bandwidth, ठीक है ना? So bandwidth of FM will be infinite, okay? So now what will be the power, okay? So if you go for the power, so the power will be so the maximum power required for FM, and you mind it, FM is wideband FM, okay? So you know that this power is your magnitude square by 2, that is only required. So the AC square and summation of Jn beta square divided by 2, because the bandwidth and the magnitude is this much only, right? The magnitude is this much, okay? So so everything depends on your Jn beta, okay? So the bandwidth also sideband's magnitude also depends on your beta. So I just let us say about some characteristics of this beta, okay? So the characteristics of this beta, so I just told you this is called Bessel function. An beta, right? So it depends
ऑन n, तो सबसे पहले क्या होगा, बीटा इज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, हियर बीटा इज योर modulation index, right, in our case, and n is obviously varying from a number of side bands. N is the number of side band, right, and this side bands will vary from minus infinity to plus infinity. Okay, so this characteristic is that I will show you a graph. Its calculation has been already made. ये कोई फार्मूला मिल गया तो मैं वो आपको दे दूंगा, बट आई थिंक पहले इसको लिख लो. So the first point is that its property that for n even, that is if n is even, then this Jn beta will be equal to this is about the magnitude, right? J minus n beta. So the first things you have to keep in that it will be, and for odd, and if n is odd, then Jn beta will be equal to minus J minus n beta. ठीक है ना, राइट. सो व्हाट डज इट मीन, मतलब ये होगा कि आपका जो है J1 बीटा विल बी इक्वल टू माइनस J माइनस 1 बीटा, बिकॉज 1 इज ऑड, राइट. इफ n की वैल्यू 1 है तो ये आपका जो है डिसमिस. So the magnitude will be only negative for odd harmonics, and it will be same for the even harmonics for n negative. So it, in a nutshell, you can write is that Jn beta. So if you want to write in this, so Jn beta will be equal to -1, तो पावर n जानते हैं कि जब n की वैल्यू ऑड होगी तो माइनस हो जाएगा, इवन में प्लस हो जाएगा, एंड j minus n beta. So you can write like this very simply. Okay, एक और इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी है जो कि मोर इम्पोर्टेंट. So another characteristic is that the second point is that for betas, small or beta, that is for beta less than 1, if beta is less than 1, then J0 beta will be approximately equal to 1, okay, and J1 beta will be approximately equal to beta by 2, and Jn beta will be approximately equal to 0. This is all approximation, obviously, for n greater than 1, right? So these two characteristics are very important for this Bessel functions. So that will decide, and there's another third property is that this summation minus infinity to plus infinity Jn, if you sum the square, जब स्क्वायर करोगे तो ऑड वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, इवन वाला पॉजिटिव रहेगा. So its sum will be equal to
1, ठीक है ना. सो its sum will be equal to 1. ठीक है. Are you getting my points? हेलो. यस सर. अरे कुछ तुम सुन रहे हो बीच में, खाली यस सर. बोला करो. तीनों प्रॉपर्टीज को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. अब ये लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया है ना, इसका तो पहले ही तुमको हम एप्लीकेशन बता दे रहे हैं. लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया है, ये हमने किया था पावर. पावर हो गया यहाँ पे, दिस इज द पावर, राइट. सो दिस मीन्स यूजिंग दैट प्रॉपर्टी नंबर 3, दिस बिकम्स AC स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना. एंड व्हाट इज AC स्क्वायर बाई 2 क्या होता है सर पावर. कैरियर किसका पावर? कैरियर पावर. Yes, So sir. this is equal to carrier power. Okay, so this you can say carrier power. Okay, so this means आपका जो हमने शायद पहले भी आपको एक कहीं जिक्र किया था कि this power of the FM is equal to carrier. अभी तक हमने क्या निकाला है सारे मॉड्यूलेशन में? बैंडविड्थ और पावर. तो बैंडविड्थ हो गई इनफाइनाइट. ओके, ऑल्दो इनफाइनाइट कोई चीज नहीं है, उसको हम बाद में बताएंगे, इनफाइनाइट को हम डिस्कस बाद में करेंगे. बट पावर हमारी क्लियर हो गई फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द बेसल फंक्शन दैट द पावर विल बी इक्वल टू कैरियर पावर. ओके, और दिस पावर, सो इसका मतलब है कि एफएम की पावर जो है आपका डीएसबी और एसएसबी से ज्यादा है, बट इट इज लेस देन योर स्टैंडर्ड मॉड्यूलेशन, क्योंकि उसमें आप पीसी वो 1.5 टाइम पीसी होता है, बट डीएसबी एंड एसएसबी में इट इज मच लेसर. सो द पावर रिक्वायरमेंट in PC is greater than DSB and SSB. ठीक है ना, दो बातें आपको समझ में आ गई. अब सवाल कुछ इसमें पूछना तुम लोग को है. तो एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ. ये तो हमने आपको जो है थोड़ा सा कुछ बता दिया, बट ऑब्वियसली आपको जो है बीटा इज, ये प्रॉपर्टी जो है आपकी जो है सेकंड वाली, दिस इज ओनली व्हेन बीटा इज लेस देन 1. बट आई टोल्ड यू दैट इन प्रैक्टिस बीटा इज नॉट लेस देन 1. सो आपको क्या होता है जब बीटा लेस देन 1 करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? नैरो बैंड हो जाएगा, है ना. और हमें नैरो बैंड एफएम नहीं यूज करना है. सो दिस प्रॉपर्टी इज ओनली फॉर नैरो बैंड. इसको तुम लगा के देखोगे तो बिल्कुल नैरो बैंड का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना. वी हैव टू यूज वाइड बैंड. तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है, इट इज ओनली फॉर applicable in case of narrow band, which is hardly used in FM. बाकी जो प्रॉपर्टी नंबर, सो मतलब क्या हो गया आपका, ये इसका मतलब क्या हो गया कि नैरो बैंड एफएम के लिए खाली आपको दो ही साइड बैंड होंगे, एक J0 एक J1, ठीक है ना. बस दो ही साइड बैंड होंगे और कोई साइड बैंड होगा ही नहीं, ठीक है ना. सो नैरो बैंड एफएम में यू हैव सीन देयर आर ओनली 2 साइड बैंड्स. ओके, सो this means but in practice the beta is much larger than fm. तो उसके लिए फिर आपको ये सारे jn beta कैलकुलेट करना है. jn beta कैलकुलेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मैं आपको जो है कंप्यूटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसका एक मेरे पास देखो कुछ टेबल है तो मैं दे दूं आपको. इसका पहले तो ये है कि आपका जो है एक ग्राफ आपका आता है. so this is a this is a so this is plot for बेसल फंक्शन. ये jn बीटा का वैल्यू है यहाँ के ऊपर है, ऊपर को, और नीचे को क्या चीज है, ये बीटा है. लिखा आपका mf, ये चूंकि m से रिप्रेजेंट है, एक्चुअली इट इज योर बीटा, ठीक है ना. दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स. तो मॉड्यूलेशन से 0 1 2 3 बढ़ता जाएगा आपका, और दिस इज अ वैल्यू ऑफ jn beta. So actually this is the value of jn beta, right? And this is the curve. So this is for this curve is when n is equal to 0. This curve is when n is equal to 1. Similarly this curve is when n is equal to 3 and so on. तो ऐसे आप जो है डिफरेंट कर्व निकाल के मैग्नीट्यूड यू कैन कैलकुलेट. सो आप फॉर एग्जाम्पल बीटा की वैल्यू आपको जो है लेटेस्ट है कि 8 है, ठीक है ना. इफ द बीटा वैल्यू इज 8 which is greater than 1, or you have to calculate the value for n is equal to, अब यहाँ पे तुम जो है ये लाइन तुम ड्रॉ कर लो, ठीक है ना. एंड यू कैन कैलकुलेट J0 बीटा, J1 बीटा
and J2 beta and all this for all different values of n. So ये 5 तक क्या है, ये जो कर्व आपका है दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 5 तक प्लॉट है. सिमिलरली यू कैन प्लॉट मेनी कर्व. ठीक है, इसका एक ये तो आपको सिर्फ जो है विजुअल के लिए है, बट देयर इज आल्सो ए टेबुलर फॉर्म. आई विल शो यू. टेबुलर फॉर्म दिखाते हैं. Also see in the books you can find, there is no issue. You can अभी बेसल फंक्शन डालोगे तो दिस इज ए, ये आपका ठीक है ना. So this is in the tabular form you can see that. So this is the n. ठीक है, so this is n, right? This is n. So आपका जो होगा J0, J1, J2, J3 and this is your MJ, that is actually this is your beta, right? So beta value is going from यहाँ तक beta का वैल्यू 1 है. ठीक है ना. So you have seen जब बीटा का वैल्यू 1 है, इनफैक्ट 1 से थोड़ा नीचे ले आओ, 1 तो हमने कहा बहुत बाउंड्री लाइन होती है. तो यू हैव सीन दैट कितने साइड बैंड्स आ रहे हैं तुम्हारे. ठीक है, तो इसके इवन थर्ड को देखोगे, थर्ड हार्मोनिक्स को, सो इट्स वैल्यू इज 0.02, राइट. सो आपका जो है सेकंड को देखोगे तो 0.111. सो दे आर आल्सो नॉट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. सो इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हमने कहा था अप्रोक्सीमेशन है. सो अगर जो कोई चीज मैक्सिमम वैल्यू के लेस देन 10%, यू नो दैट इज इफ सो एक चीज यहाँ पे लिखो, सिग्निफिकेंट साइड बैंड क्या होते हैं. साइड बैंड, सिग्निफिकेंट साइड बैंड किसे कहेंगे, क्योंकि आई टोल्ड यू कि साइड बैंड जो हार्मोनिक्स, उसको हार्मोनिक्स बोलो. एक्चुअली पावर के टर्म में वी कॉल इट हार्मोनिक्स, बट वी कॉल इट साइड बैंड्स इन कम्युनिकेशन. सो द साइड बैंड्स की मैग्नीट्यूड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो सिग्निफिकेंट साइड बैंड ये स्टैंडर्ड है आपका जो है. पावर में क्या करते हो, कोई चीज लेस देन 10% मैक्सिमम रेटिंग उसको 0 मानते हो ना तुम, क्या जी. हेलो. यस सर, नेग्लेक्ट कर देते हैं सर. यस सर, नेग्लिजिबल हो जाता है. 0 10% से लेस मैक्सिमम रेटिंग का तो उसको क्या बोलते हो, उसको नेग्लेक्ट कर देते हो, 0 मान लेते हो. ठीक है ना. अप्रोक्सीमेशन आपका जो है पावर में, बट हमें कम्युनिकेशन में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट रखते हैं. तो इफ इट इज लेस देन 1%, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ इट इज लेस देन 1% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आपका आ जाएगा, AC, वही है ना. आप जो एम्पलीट्यूड को देखोगे तो क्या चीज तुम्हारा एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, यस सर. JN बीटा, यही तो आ रहा है ना. JN बीटा वेरी कर रहा है. तो अगर जो JN बीटा की वैल्यू जो है 0.1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 AC, राइट. ओके. सो इसका मतलब ये इसके हमने 1% लो. ठीक है ना. आप पावर में क्या लेते हो, पावर इंजीनियरिंग के अंदर 10%, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सो वी टेक लेस देन 1%. तो कोई चीज लेस देन 1% है तो दिस बिकम्स, सो दिस मैग्नीट्यूड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ मैग्नीट्यूड, राइट, JN बीटा, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 1% ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, AC हो जाएगा. ठीक है ना, हम लिख नहीं रहे हैं बट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बट आपको यही चीज होता है कि अकल लगानी होती है. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, देन इट इज कॉल्ड
सिग्निफिकेंट साइड बैंड। ठीक है ना, तो उनको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट, उससे नीचे वाले जो हो गए आपके जो है जीरो हो जाएंगे। तो इफ इट इज लेस देन 1 उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो है 0.1% है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिए, हम नहीं कहते हैं। ठीक है ना, बट दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे कितने साइड बैंड्स आ गए, है ना, 1 और 2 आ गए। ओके, 2 इधर और 2 फिर नेगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव में भी जाएगा आपका। ठीक है ना, सो आपके 4 साइड बैंड्स आ गए। सो दिस इज वाई आई टोल्ड यू कि 1 इज नॉट ए, आपको जो बीटा की वैल्यू 1 है तो वो आपका नैरो बैंड में नहीं आता है। नैरो बैंड में तभी आता है जब आपका जो है एक्चुअली देखो 0.5 के ऊपर भी नैरो बैंड नहीं बन रहा है इस रूल के हिसाब से, क्योंकि 0.2 है इसका। ठीक है ना, 0.2 है आपका। सो बट आपका जो है जब यहाँ पे आप आते हैं सो यू हैव ओनली 2 साइड बैंड्स। ओके, क्योंकि 0 वाला वैल्यू है, ये 1 वाला वैल्यू आपका है। ठीक है ना, सो नॉर्मली क्या होता है इन प्रैक्टिस, यहाँ से क्या बात समझ आई कि फॉर नैरो बैंड FM बीटा इज नॉर्मली वी कीप लेस देन 0.25। ठीक है ना, नॉर्मली हम 0.2 लेते हैं नैरो बैंड के लिए। ठीक है, बट थियोरेटिकली हम आप लिखा लेस देन 1। ओके, सो दिस, but now see if let us say beta is 9, so you have so many side bands यहाँ तक। तो इस स्टैंडर्ड रूल से आप साइड बैंड निकाल सकते हैं। कहाँ तक निकलेगा आपका जो है साइड बैंड 0.3, 0.2, 0.1 तक आ गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ तक साइड बैंड निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सो फॉर बीटा इज इक्वल टू 9 यू कैन साइड बैंड्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, 10 हो गए। ओके, सो 10 तो ये हो गए, 0 वाला साइड बैंड 0 वाला कैरियर होता है, 10 प्लस में हो गए, 10 माइनस में हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो साइड बैंड जब भी हम बनाते हैं आपका, तो साइड बैंड्स गोज लाइक, जब वो साइड बैंड तो बनाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका तो 0 वाला हो गया, यहाँ कैरियर आ गया आपका FC, तो एक इधर जाता है तो इसका एक माइनस आएगा, ये प्लस वाले में एक माइनस वाले में। ठीक है ना, FC प्लस FC माइनस, तो इसलिए इट विल गोज लाइक दैट। ठीक है, सो काफी बातें समझ में आ गई। सो व्हाट इज द बैंडविड्थ। ठीक है ना, सो व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ दिस FM कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तो आइडियली क्या बोला आपने, इनफाइनाइट, लेकिन हम आइडियली इनफाइनाइट है, बट प्रैक्टिकली तो हम क्या करते हैं। सो प्रैक्टिकली क्या है, द बैंडविड्थ इज दैट which encompasses all the significant side band। बैंडविड्थ क्या हो गया आपका, बोलो सर सिग्निफिकेंट साइड बैंड को लेंगे हम। हाँ, ठीक है ना, तो अगर जो आपका जो है सिग्निफिकेंट साइड बैंड आपके जो है 3 हो गए तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट साइड बैंड का मतलब क्या हो गया आपका, कि आपका ये FC है, तो ये FC प्लस FM। ठीक है ना, FC प्लस 2FM और FC प्लस 3FM। ठीक है ना, और ऐसे फिर इधर भी आएगा आपका, तो बैंडविड्थ यहाँ से लेके 6 FM हो जाएगा, तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, हाँ 6 सर 6 FM। ओके, सो द bandwidth is, so the bandwidth will be, so the bandwidth of FM will be equal to n FM, like twice n FM, sorry, twice n FM, where n is the number of significant side band। ठीक है ना, ठीक है, ओके ना, एक फॉर्मूला और याद कर लो इसको, तो ये हमने यहाँ से कैसे कैलकुलेट किया है, हमने ये देख करके बेसल फंक्शन से देखा है कि सिग्निफिकेंट साइड बैंड कहाँ से आएंगे आपके, बेसल फंक्शन से आएंगे, राइट। बट देयर इज अनदर, साइंटिस्ट में काम करते रहते हैं कि ये तो बेसल फंक्शन चूंकि कॉम्प्लेक्स इश्यू है, तो उन्होंने एक थियरी और निकाली है, और दैट इज
called Carson's rule. कार्सन है या कॉल्सन है, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, या फिर मेरे पास किसी कार्सन से कार्सन्स रूल जो है वो क्या कहता है, इसकी स्पेलिंग कहीं देख लें तुम लोग। इट इज एन इम्पेरिकल फार्मूला, इट इज नॉट ए डेराइव्ड फार्मूला। पर ये इम्पेरिकल में क्या होता है, जिसका रूल नहीं होता, बस आपने डेटाबेस बनाते हैं। सो कार्सन रूल जो है कहता है कि द बैंडविड्थ ऑफ एफएम कैन बी गिवन हियर एज ट्वाइस डेल्टा एफ प्लस एफएम, एंड दिस इज ऑफ कोर्स वी से अप्रॉक्सीमेट, क्यों एग्जैक्ट नहीं होगा। व्हाट इज डेल्टा एफ? डेल्टा एफ क्या बताओ? डेविएशन जो आता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। इसका नाम भी रट लो, जो लिखा है वही वर्ड। चेंज इन फ्रीक्वेंसी अलग होगा, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, राइट। एंड एफएम क्या हो गया आपका? सर मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट में कैसे करते, कुछ चीजें सही वर्ड याद किया करो। ओके या इसमें I have not checked it, but you send it. Obviously, I will receive it. ठीक है ना, we just send it. Okay. Okay. So, FM is the highest frequency modulating signal. ठीक है ना? So FM is the message signal. इसको भी हमेशा याद रखो, highest message frequency. Highest message frequency. क्योंकि एक मैसेज फ्रीक्वेंसी में जब मल्टी टोन होगा तो इसे बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तो इसको तुम जो है बीटा के टर्म में डेल्टा एफएम को लिखो, कितना होता है? बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एफएम होना चाहिए, तो डेल्टा एफ अपॉन एफएम, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेल्टा एफ इज इक्वल टू हो गया आपका डेल्टा एफ इज इक्वल टू हो गया बीटा इंटू एफएम, ये हो गया ना। अब इसी को लिख लो फार्मूले को। सो तो 2 बीटा एफएम प्लस एफएम, राइट। ओके, सो या इसको बीटा को हम चेंज कर देते हैं। तो चलो इससे बहुत सा निकाल सकते हो। तो इसमें क्या हो गया आपका 2FM 1 प्लस बीटा, ये आ गया ना आपका। ओके, अच्छा एक थोड़ा FM की जगह पे हम क्या लिखेंगे? FM इज इक्वल टू क्या हो गया आपका डेल्टा एफ बाई बीटा। इसको लिख लो, अगर जो इसको यूज करोगे तो क्या बन जाएगा ये? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन हियर एज ट्वाइस डेल्टा एफ प्लस डेल्टा एफ बाई बीटा, ठीक है। ओके, ओके ये आ गया आपका। नाउ इफ बीटा इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है ना, ठीक है, बीटा इज वेरी लार्ज, इसका मतलब ये होता है बीटा इज वेरी लार्ज। तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट बैंडविड्थ, आप ये कर लो कि डेल्टा एफ से, ठीक है ना, तभी होगा। सो क्या हो जाएगी ये? 2 डेल्टा एफ सर 2 ऑफ ठीक है ना। ये सारा आपका सिंप्लिसिटी फॉर्मूले का है, ठीक है ना, राइट। सो यू कैन प्ले इन अ डिफरेंट वे,
वंस आपका स्टैंडर्ड फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला स्टैंडर्ड वाला आपका ये है, ठीक है ना। यू कैन ऑलवेज, आपने क्या किया, ये एफएम का टर्म में निकाल लीजिए, ओके, यू हैव कम इन टर्म्स ऑफ एफएम, ओके। सो दिस इज योर आइदर इन दिस वे और इन हियर दिस वे, ठीक है ना। अगर जो एफ बीटा की वैल्यू जो आपकी जो है, इफ बीटा इज लेट अस से लेस देन 0.2, बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस एफएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या चीज होता है आपका है, ये नैरो बैंड एफएम का होता है, और जब बीटा लेस देन 2 होगा तो नैरो बैंड एफएम ही आपका आएगा, ठीक है। सो दीज आर द आई मीन मैथमेटिकल इक्वेशन यू कैन प्ले विद इन a different way as per your requirements, ठीक है। I think we have seen different ways, ठीक है। So यार मैं इसके बाद क्या करना है, बट ठीक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। So I will stop here, ठीक है ना। कुछ पूछना तुम लोगों को? नहीं, वो तो पूछने की जरूरत नहीं।